Good morning, students. How are you all? I hope so. You all are fine in your home and serious about your studies also. We know very well about your 10th class examination, but as we started the 11th class, so focus on these things also. No need to write too much in your notebook. Whatever you are just understanding related to topic, you write down from your book or in your own point of view. But firstly, you will do the first thing. Whatever you are writing in your notebook, take a pic and send me in a WhatsApp. Whatever you are writing in the notebook, take a pic and send in my WhatsApp number, not in a group. Okay, I will check your work, or you are writing in a proper manner, or you have any type of difficulty. So definitely I will sort out that one thing. So as in last video we started the chapter 2 self and the personality, and that one video I told you about the meaning of the self. हमने मीनिंग सेल्फ की कुछ मीनिंग के बारे में बात करी थी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था पर्सनैलिटी का. व्हाट इज़ अ पर्सनैलिटी एंड व्हाट इज़ अ सेल्फ. सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है. आई गिवन यू वन एक्टिविटी ऑल्सो, एक्टिविटी 2.1, but still no one send me your homework related to that one activity in my group. So it is very embarrassing for me. Download the PDF, purchase your book of a 12th class. So okay, if you are able to purchase, so definitely your parents will go for purchasing a book, and if you are not able, so doesn't matter. I send the PDF in a PDF of your book. You download that one PDF of NCERT psychology book. लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक सेल्फ. हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेल्फ के बारे में. इन दैट वन वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द पर्सनल आइडेंटिटी एंड अ सोशल आइडेंटिटी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दैट वन टॉपिक, दैट इज़ अ सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ सब्जेक्ट. अब यहाँ पे हम सेल्फ को बात करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिस्क्रिमिनेट करेंगे. ठीक है. अगर हम चलते हैं दैट वन एक्टिविटी 2.1 में, जिसमें हमें डिस्क्राइब क्या करना था, सेल्फ को डिस्क्राइब करना था. आई डैश डैश, आई डैश डैश, द मोर देन आई थिंक 10 sentences आर गिवन टू यू. You write down the time according whatever you are writing in that one activity. You note down that one time and do the things in a proper manner. So after that you can know about yourself. So we will find that you have described yourself. Either I am a good dancer, बहुत से बच्चों ने ऐसे लिखा होगा I am a good dancer, I am a good player. So if you write in that one example I am a dancer, or the entity what you are having, writing something is a done. I am the one who easily get hurt. I am the one who easily get hurt, or I am a good dancer, I am a good player. So in this form the case self is described as a subject. अगर आपने वो वाली एक्टिविटी डन करी है तो आपको अपने सेल्फ के बारे में डिस्क्राइब कराया आपने. तो यहाँ पे हम किसको डिस्क्राइब करें, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट. हम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है. द सेल्फ इज डिस्क्राइब एज अ सब्जेक्ट हु डज समथिंग. नाउ द सेकेंड थिंग इज हु डज समथिंग. इन द लेटर केस द सेल्फ इज कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट विच गेट्स अफेक्टेड. अब अगर हम उसको इनडायरेक्ट वे में बात करें कि हु गेट अफेक्टेड और हु डज समथिंग, किसने को ये वर्क करा था, तो यहाँ पे सेल्फ क्या हो गया है, एक ऑब्जेक्ट में हो गया है. जहाँ पे आपने लिखा था आई एम अ डांसर, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ दिस, आई एम अ दैट, यहाँ पे आपने सेल्फ एज अ सब्जेक्ट करा था. और जहाँ पे हम पूछते हैं हु डज समथिंग, तो वहाँ पे हम खुद क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए. दिस इज़ अ मेन डिफरेंस. यहाँ पे सेल्फ क्या है, एज अ द आई नो हु आई एम. अगर हम बोलते हैं अपने लिए आई नो हु आई एम, तो हम क्या है यहाँ पे, एक नोअर है. सो एज वेल एज समथिंग कैन बी नोन. तो सब्जेक्ट एज अ एक्टर और सब्जेक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस में क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जब हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो ये है मेन डिफरेंस सेल्फ एज अ सब्जेक्ट और सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट का. यू नो नीड टू वरी अबाउट. यू टेक अ एग्जाम्पल, I am a dancer, this is a self as a subject, and when we talk about who does something, so definitely it is a self as a object. Let's continue the topic with the types of self, kinds of self.
we know we describe about the things, I am very emotional, I am very sensitive, और डिस्टिंग्विश द टू थिंग्स कम इन आवर माइंड, दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं. एक होता है फर्स्ट वन इज़ अ पर्सनल सेल्फ एंड सेकंड इज़ अ सोशल सेल्फ. पर्सनल सेल्फ जो बेसिकली ओरिएंटेशन होता है वो किससे होता है, प्राइमरी कंसर्न अबाउट आवर सेल्फ. द पर्सनल सेल्फ इज़ रिलेटेड विथ अ, यस, द पर्सन प्राइमरी कंसर्न जो किसके लिए, हमारा अपने लिए है. हमारी जो भी बायोलॉजिकल नीड है, जो भी हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स in a context of her or his environment. This leads to a component of the personal self to emerge. इसमें हमको किस में एम्फेसिस करना है, come to be laid on the concerned person. जैसे अभी मैंने कहा I am a good dancer, और जो भी मेरी बेसिक नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, चाइल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोसाइटी की नीड्स मेरे एस्पेक्ट्स में हैं या फिर मेरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, मेरी पर्सनल सेल्फ होंगी. अब ये अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, फिर ये सोशल सेल्फ क्या है, व्हाट इज अ सोशल सेल्फ. तो सोशल सेल्फ इज अ इमर्ज ऑफ अ रिलेशनशिप विद अदर्स, इमर्ज द रिलेशनशिप विद अदर्स, और वी एम्फेसिस सच एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ, और भी जस्ट क्या कहेंगे, एम्फेसिस करते हैं अपने लाइफ के. कोऑपरेशन होती है, यूनिटी होती है, सेक्रीफाइस होता है, सपोर्ट होता है, शेयरिंग होता है. बेसिकली ये जितने भी सेल्फ वैल्यूज़ की बात करी है, ये फैमिली या फिर सोशल रिलेशनशिप में होगा. अगर हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, यूनिटी की, एफिलिएशंस की, सैक्रिफाइस की, सपोर्ट्स की, तो ये सारे किसके कंसर्न में हो रहे हैं, ये सारे फैमिली और सोशल रिलेशनशिप के कंसर्न में हो रहे हैं. तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, हमारा फैमिली है या फिर रिलेशनशिप सेल्फ कहलाएगा. जो किसके कंसर्न में आएगा, सोसाइटी के कंसर्न में आएगा, सोशल सेल्फ कहलाएगा. जो देखो बेटा, दो ही टाइप के सेल्फ है. पर्सनल जिसमें हमारी क्या हो रही है, प्राइमरी नीड फुलफिल हो रही है, बायोलॉजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल, और सोशल नीड्स हमारे हर और हिज एनवायरनमेंट से के कंसेप्ट में. और सोशल सेल्फ किससे डिनोट कर रहा है, सोशल सेल्फ हमारा वो डिनोट कर रहा है जहाँ पे हम कोऑपरेशन, यूनिटी, शेयरिंग कर रहे हैं, एफिलिएशंस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सपोर्ट हो रहा है, किसके कंसर्न में, फैमिली या फिर सोसाइटी के कंसर्न में. ठीक है, ये तो था हमारा काइंडसेप्ट सेल्फ. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉग्निटिव एंड अ बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ. कॉग्निटिव, एज आई टोल्ड यू, व्हेन एवर द वर्ड कॉग्निटिव विल कम, दिस विल कंसर्न एज अ मेंटल, ये मेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा. अब कॉग्निटिव और बिहेवियर एस्पेक्ट्स क्या हैं हमारे सेल्फ के, इसमें हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बात करेंगे. जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टीम. फाइन, सेल्फ स्टीम इज इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेल्फ. एक सेल्फ स्टीम एक हमारा क्या होता है, एक हमारा खुद को लेके वैल्यू जजमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टीम कहते हैं. मेरा सेल्फ स्टीम जितना हाई होगा, डेफिनेटली आई विल डू इन अ मोर पॉजिटिव वर्क. फाइन, इसके अलावा सेल्फ एफिकेसी है, सेल्फ रेगुलेशन है, और क्या है, दिस मच ओनली. ठीक है, तो हम बात करेंगे सेल्फ स्टीम पे, बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ रेगुलेशन पे बात करेंगे. फाइन, नाउ व्हाट यू विल डू, you take your notebook, watch the video carefully, whatever problem you have related to the topic, again I am saying to you, write the word, difficult word from the chapter or from the video, and find the meaning. If you have any doubt, any queries, send me in my WhatsApp number. I am waiting for your queries. ठीक है, और बेटा आपको एक और वर्क करना है. what you will do, you write the things, you write, make the notes, not more than 1 or 2 page. आपको कुछ नहीं करना है, एक पैराग्राफ लिखना है. you write the paragraph of a 4 or 5 line. ठीक है, this much is sufficient for the today's video, but send in my WhatsApp group. I am waiting for your answers. Thank you, have a nice day.